सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देर आर 6 बेसिक टूल्स प्रायरली वी शुड नो टू बिगिन विद द फिजिक्स। इनमें से हम फर्स्ट टूल के बारे में पढ़ चुके थे काफ़ी डिटेल में। हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ये भी हम कवर कर चुके थे इन आवर सेकेंड वीडियो। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी कंसेप्चुअल वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन बेसिक ज्योमेट्री। तो ये हमारा थर्ड टूल है, तो एक एक करके हम सभी टूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बेसिक ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक ज्योमेट्री. In basic geometry, we are going to discuss coordinate geometry. Coordinate geometry is very important, which is the starting of basic geometry, and its importance you can realize after the video. You watch full video, then you are going to realize that how much important this topic for entrance examination preparation. This tool is very important in physics, and you will definitely need it to solve the problems. Okay, so let's begin with the coordinate geometry. Here you can see the beautiful picture of a tall building. This is the very huge building, and you can see that it has a number of floors. We can also count, but 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. It is almost 15 floors tall and somewhat down also. So let us say we have to find the position of this green marked window, or we have to find the position of this yellow marked window, or we have to find the position of this red marked window. So how can we find the correct position, or how can we locate this position? Okay, so to locate this position, we have considered here one reference axis. This is y-axis. This is the origin, which is the reference point, and this is the x-axis. Okay, so with respect to this axis, we are going to define the location of this red marked window. So we can say that this red marked window is 1 2 and 3 steps towards positive x-axis, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 steps toward positive y-axis. So to relocate the correct position, we require this coordinate geometry, है ना. सो पहला हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्यों पढ़ना है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम किसी भी पोजीशन को रिलोकेट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे हम सपोज करो येलो वाली खिड़की को हमें डिफाइन करना है, तो हम डिफाइन करेंगे 1 2 3 4 5 स्टेप्स फ्रॉम origin to the positive x-axis and 15 steps to the positive y-axis, है ना. तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि x पे इसकी पोजीशन ये है, y पे इसकी पोजीशन ये है, तो हम उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम रीच कर सकते हैं. ओके, this is also a very beautiful example. You can see that teacher is teaching in a classroom to the students, and these are the number of rows, and these are the number of columns. Number of columns are on the x-axis, and number of rows are on the y-axis, है ना. Let us consider this point to be origin, that is a reference point. From here we can define the location of each and every student. Suppose we have to define the location of this yellow marked student, so we can define its position as it is at 4th on the x-axis, that is 4th column, and 1 position on the y-axis, that is first row and 4th column. Okay, suppose we have to define the position of this blue student, so we can define its position. It is at the 5th column and it is at the 3rd row. Okay, so teacher can define and locate each and every student. These empty spaces are all students which are sitting in the classroom, and we have considered the 3 example here: student S, student B, and student C. Suppose we have to define the location of student C, so we can define like this: it is at the 7th number of column, which is on the x-axis from the origin, and it is at the 6th row.
So we can write like 7th column and 6th row, so we can reach this point or this student, है ना? So to locate the different position we need this coordinate system. So you can understand the importance of this in practical life also, as we have seen from these two examples, one of the tall building and second one is of the students which are taught by a teacher in a classroom. Here also we need this coordinate geometry. So you can realize the importance of this coordinate geometry. We are going to see one more beautiful example. So let's continue. This one is the example of a page. This is the page of the book. This is the book page. No, this is the page, and you can see the bottom edge of the book page. This is the bottom edge and this is the left edge. Suppose we have a number of points. There are infinite points on this page. We have consider point A and we have to locate this point on this page. Okay, so we can locate it that from bottom edge it is at 7 centimeter, and from left edge it is at 5 centimeters. So we can reach this point. Similarly, we can locate this point by taking the reference of this bottom edge. Bottom edge is lying on this our x-axis, and this point is the origin point, and left edge is lying on the y-axis. So by considering the coordinate axis, we can locate the different points on this page. We can also locate this B point from the bottom edge and also from the left edge. Similarly, we can locate C point. So you can locate any number of points on this page. Now you can realize the importance of coordinate geometry in our day-to-day life, and that is why we are going to study this topic, and also very important from the preparation of competitive examination. So concentrate very carefully and try to understand each concept in a smooth manner. Okay, so let's begin with the coordinate geometry, which is the third basic tool as we have discussed earlier. Coordinate system. To understand the coordinate geometry, we are required to understand the coordinate system. So basically there are two coordinate system. Number one is the Cartesian coordinate system, or it is also known as rectangular coordinate system, and number two is the polar coordinate system. Okay, these two coordinate system are very important to understand the basic concepts of coordinate geometry. So first of all, we are going to discuss the Cartesian coordinate system. In Cartesian coordinate system, we have one origin point, and this is our reference x-axis. This is our reference positive y-axis. This is our reference negative x-axis, and this is negative y-axis. Okay, so we have divided these axes in 4 quadrants. This is quadrant number 1, this is quadrant number 2, this is quadrant number 3, and this is quadrant number 4. In first quadrant, we have located one point A. You are able to see the position of this point A, that is x1. x1 is the position from on the x-axis, that is distance from the y-axis. We can say that x1 is the distance from the y-axis and on the x-axis. Similarly, y1 is the distance from the x-axis and its point is on the y-axis. So we have located this point. You can see that here x is also positive, y is also positive. So in first quadrant both the values are positive. In second quadrant you can see that x values are negative and y values are positive. So location of B point is minus x2 comma y2, means x coordinate is negative, y is positive. In third quadrant we can see that x values are also negative and y values are also negative. So this quadrant is third quadrant. In fourth quadrant we can see that x values are positive and y values are negative. So we have written like this, positive and negative. The first value is of x and second value is of y. So we can understand the sign convention which can be followed in the Cartesian coordinate system. Okay, so let's continue. Next is the polar coordinate system.
अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किस फॉर्म में होता है. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा आर और थीटा के फॉर्म में होगा. इट इज इन द फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा. लेट्स से वी हैव टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ए 2, pi by 3. So 2 is the value of r here and pi by 3 is the value of theta, है ना. सपोज करो हमें इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो 2, as we have seen that this is positive value and theta is also positive. और हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टूल में पढ़ चुके हैं कि थीटा पॉजिटिव तब होगा जब आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस and in the counter clockwise direction we have taken the theta value pi by 3. So this is the correct representation of point A in polar form. Okay, suppose we have to represent -2, pi by 3. Now again you can see that this r value is negative but theta is positive. So theta is positive means you have to move from positive x axis in counterclockwise direction, and -2 means just opposite to this you have to draw a line of 2 centimeter. Okay, so 2 यूनिट्स की लाइन आप ड्रॉ कर दोगे तो ये हमारा बी पॉइंट का प्रेजेंटेशन हो जाएगा. सपोज करो हमें सी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, दैट इज 2, pi by 3. अब यहाँ पे देखो थीटा नेगेटिव हो गया, तो जब थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा. तो ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ से हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे pi by 3, तो हम नेगेटिव थीटा हो गया. और कितने यूनिट्स जाना है हमें, 2 यूनिट्स. तो 2 यूनिट्स हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है ना. अब सपोज करो हमें डी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे देखो आपका डिस्टेंस भी नेगेटिव है और यहाँ पे जो थीटा है वो भी नेगेटिव है. मीन्स यू हैव टू रोटेट क्लॉकवाइज फर्स्ट फॉर नेगेटिव थीटा एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर. मीन्स in positive r we are going towards downward and negative r we have to draw a line that is opposite to the point C. So D point को reach कर गए हम. तो इस तरह से हम represent कर सकते हैं A point. आप देख लो r, थीटा का मतलब यही होता है कि हमें उस थीटा की डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस मूव करना है ना. तो अब आपके पास r, थीटा में हमने सारी वेरिएशंस देख ली है. r को पॉजिटिव नेगेटिव करके भी देख लिया और थीटा को भी पॉजिटिव नेगेटिव करके देख लिया. तो हमने 4 डिफरेंट केसेस, 4 डिफरेंट पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में, ये हमें आना बहुत ज़रूरी है. इसलिए इस सिस्टम को बहुत ध्यान से समझिए. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स. अब जो हमने 2 कोऑर्डिनेट्स के अभी सिस्टम देखे, तो अब हमें इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए. रिलेशन पता होना बहुत ज़रूरी है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने यहाँ स्केच किया. दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज 1 पॉइंट. ओके, सो हम इसको एक्स और वाई के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं. हम इस पॉइंट को r, थीटा के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं. देखो इस पॉइंट पे पहुंचने के 2 तरीके हैं, है ना. अगर मैं सोचो मुझे इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है, तो मैं तो या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से करूंगा कि भाई इस ओरिजिन से x पे इतना चलो और y पे इतना चलो, देन यू कैन रीच दिस पॉइंट. और यू कैन से दैट काउंटर क्लॉकवाइज थीटा इतना रोटेट हो जाओ और इतना रोटेट होके r डिस्टेंस चलो, देन ऑल्सो यू कैन रीच द सेम पॉइंट. सो दीज आर बेसिकली द डिफरेंट मेथड्स टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द पॉइंट. ओके, किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिनोट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, जिसमें से ये 2 मेथड बहुत ही पॉपुलर है और आपको पता होने चाहिए. वन इज द कार्टेशियन एंड अदर इज द पोलर. अब इन दोनों मेथड के बीच में क्या रिलेशन है ये जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं. फिजिक्स में आप डील करोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही काम आएगा. तो अब देखो साइन थीटा, वही हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आ गई. साइन थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, देखो परपेंडिकुलर इज y, ये डिस्टेंस हमारी y है एंड हाइपोटेन्यूस हमारी कितनी है r. सो साइन थीटा को कैसे डिफाइन करोगे, दैट इज y अपॉन r.
सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कॉस थीटा हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टूल्स में पढ़ चुके हैं। जिनको ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज नहीं पता वो वीडियो नंबर 2 देखें जिसमें हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, और फिर इस वीडियो को देखें तो आपको वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी और ये भी चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सो मस्ट वॉच वीडियो 2 टू गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप कॉस थीटा को कैसे डिफाइन करोगे, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन आर। सिमिलरली टैन थीटा निकालना हो तो हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, सो यू विल गेट टैन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। ओके, सो अब देखो इस फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा y इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। यहाँ पे देखो r को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट y इक्वल टू आर साइन थीटा। इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, देखो x इक्वल टू आर कॉस थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। देखो x कोऑर्डिनेट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड r cos थीटा, यहाँ पे देखो थीटा और r आ गया तो मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। तो y कोऑर्डिनेट इज कार्टेशियन और r sin थीटा पोलर, तो ये हमें रिलेशन मिल गया कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट में। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर और करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे स्क्वायर करके पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़, एक बहुत ही शानदार रिलेशन मिल जाएगा। देखो आर की वैल्यू का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2। ओके, सो ये जितने भी रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिंक करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट से, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नाउ लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, यू कैन सी दैट इन एग्जांपल नंबर 1 हमें दिया हुआ है, देखो 5 पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 मीन्स आपको r कॉमा थीटा के फॉर्म में, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है और बोला है कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि अभी अभी हमने रिलेशन देखा x इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा ये रिलेशन अभी अभी हमने देखा, तो इस रिलेशन का अब हम यूज करेंगे। तो अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, x इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, r cos थीटा करेंगे। अब देखो r की वैल्यू यहाँ से हमें दी हुई है 5, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज वॉट, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, तो हमने यहाँ पुट कर दिया पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। अब यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 जो थीटा है ये हमें देखना आना चाहिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, और थीटा देखने के लिए जो हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था वो रूल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वी हैव डिस्कस द कास्ट रूल, CAST, है ना। तो ये कास्ट रूल की हेल्प से हम चेक करेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस समथिंग, है ना, कॉस थीटा। अब आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में हो, तो हम आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। 180 में से कुछ माइनस करेंगे, देखो 180 डिग्री यहाँ पे, अब 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल रीच द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टली लिख दिया -5 कॉस ऑफ tan इनवर्स पाई/3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, बहुत ध्यान से देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो cos 180 माइनस थीटा वी विल रीच इन सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल रीच इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos थीटा इज नेगेटिव, सो यू विल गेट -5 cos tan इनवर्स 4/3। अब tan इनवर्स 4/3 आपको पता है, हमने एक और ट्रिक बताई थी कि 3, 4, 5 वाला फंडा आपको पता होना चाहिए। 3, 4, 5 वाला क्या फंडा है, जैसे कि 3, 4, 5 आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। तो आप यहाँ से tan इनवर्स 4/3 निकाल सकते हो। तो tan इनवर्स 4/3 करोगे तो आपको मिल जाएगा cos 53, है ना। tan इनवर्स 4/3 मिल जाएगा आपको cos 53 के बराबर। देखो cos 53 की वैल्यू किसके बराबर है, tan इनवर्स 4/3 की। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे और cos 53 की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, तो थीटा आपका आ जाएगा 53 की, है ना। tan इनवर्स 4/3 मतलब थीटा हो गया 53 डिग्री, और 53 डिग्री अगर थीटा हो गया तो cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 53 इस ट्राइंगल से आप निकाल लोगे, cos 53 इज नथिंग बट 3/5, सो यू विल पुट दिस वैल्यू
and you will get -5 into 3/5, then x coordinate is -3. तो यहाँ से हमें x coordinate कितना मिल गया, -3 मिल गया, ठीक है. You will get x coordinate as -3. अब हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट, है ना. तो देखो ये कास्ट रूल कितना इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इस रूल का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. और ये वाला तो जो ट्राइंगल रूल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये दोनों रूल्स हमारे काम आ गए इस क्वेश्चन में, ठीक है. चलो अब हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे. तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे y इक्वल टू आर साइन थीटा. सो y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 180 माइनस थीटा. अब साइन 180 माइनस थीटा मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना. 180 माइनस थीटा मीन्स यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है. इसलिए हमने यहाँ पे देखो डायरेक्टली साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया. थीटा हम पिछली बार निकाल चुके थे, थीटा की वैल्यू हमें 53 डिग्री मिली थी. तो साइन थीटा डायरेक्टली यू कैन फाइंड द वैल्यू. अब साइन 53 की वैल्यू आप वापस वही ट्राइंगल बनाओगे और उस ट्राइंगल से निकाल लोगे कि साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है ना. तो 3 4 5 का मैजिक आपको पता होना चाहिए. ये 37 डिग्री होता है, दैट इज़ 3, दैट इज़ 4 एंड दिस इज़ 5. तो यहाँ से आप 53 की वैल्यू निकाल लोगे. तो साइन 53 की वैल्यू आ जाएगी 4/5. यू कैन मल्टीप्लाई दिस 5 इंटू 4/5, यू विल गेट y कोऑर्डिनेट एज 4. x कोऑर्डिनेट हमें मिला -3 और y कोऑर्डिनेट हमें मिला 4. इन दिस वे वी हैव कन्वर्टेड फ्रॉम पोलर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म. सो ये कन्वर्जन करना आना बहुत ज़रूरी है. फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन में, टॉप के क्वेश्चंस में आपको ये कन्वर्जन काम आएगा. कई बार टॉर्क इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच यू हैव टू कैलकुलेट इन फिजिक्स. जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आएगा, ठीक है. इसलिए आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में you have to convert into polar form. Coordinates of Cartesian coordinate are -2 and -2 and you have to convert this coordinate into polar form. तो अब हमें polar form में conversion करना है. तो बहुत ध्यान से देखो कि polar form में कैसे convert करेंगे. अब हमें x की वैल्यू पता है -2 और y की वैल्यू पता है -2, विच मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट. देखो कार्टेशियन का भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको मैंने बताया था. कार्टेशियन में भी क्वाड्रेंट्स होते हैं और पोलर फॉर्म में भी जो हम कास्ट रूल यूज़ करते हैं तो वहाँ भी क्वाड्रेंट. तो आपको दोनों के क्वाड्रेंट्स पता होने चाहिए. जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया होगा तो हम कार्टेशियन वाला क्वाड्रेंट देखेंगे. जब पोलर फॉर्म में दिया होगा तो हम थीटा वाला क्वाड्रेंट्स देखेंगे, ठीक है. तो दोनों के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि कब हमें कार्टेशियन देखना है, कब हमें पोलर वाला क्वाड्रेंट्स देखना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखो कौन से क्वाड्रेंट में, विच मीन्स वी आर इन अ थर्ड क्वाड्रेंट. देखो x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में. तो अब हमें r की वैल्यू निकालनी है. पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा के फॉर्म में होते हैं. तो r की वैल्यू देखो बड़ी सिंपली तरीके से मिल जाएगी. ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख सकते हो r की वैल्यू क्या होगी, √2² + 2², दैट इज 2√2. दिस फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ r. तो r का तो हमें वैल्यू मिल गया. अब हमें निकालना है थीटा क्या होगा. तो थीटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं. तो थर्ड क्वाड्रेंट में चलो देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे फाइंड करेंगे. तो थीटा फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो या तो आप क्लॉकवाइज रोटेट करो. देखो एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेट करेंगे, जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप देखो 180 प्लस समथिंग दैट इज 45 डिग्री. तो पाई प्लस π/4 है ना. ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 45 होगा ना. तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा C पॉइंट, बेसिकली दिस इज एट एन एंगल ऑफ 180 + 45 है ना. हम इस पॉइंट पे ना, हमें इस पॉइंट को लोकेट करना है, C पॉइंट को. तो C पॉइंट को जब हम लोकेट करेंगे थीटा वाले क्वाड्रेंट में तो ये वाला पॉइंट होगा. अब इस पॉइंट का एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो और आप क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो. तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 180 डिग्री हो गया प्लस π/4, दैट इज पाई प्लस π/4. यू विल गेट 5 π/4 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और
यू कैन मेजर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पाई बाय टू, नेगेटिव ऑफ पाई बाय टू, क्योंकि क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल लेते हैं, और माइनस पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, सो यू विल गेट माइनस 3 पाई बाय 4 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो हमें आर की वैल्यू भी मिल गई और थीटा की वैल्यू भी मिल गई इन बोथ द डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ईदर वे यू कैन डिफाइन द थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट। तो अब आंसर लिखने की बारी आई, तो हम आंसर को दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन लाइक दिस ऑल्सो, 2√2 कॉमा 5 पाई बाय 4, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आपने थीटा लिया था। और यू कैन ऑल्सो डिफाइन 2√2 कॉमा माइनस 3 पाई बाय 4। देखो अपने आप ही एंगल से हमें पता चल जाएगा कि प्लस है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया एंगल, और माइनस है तो ये क्लॉकवाइज में मेजर किया गया है। ठीक है, तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस में दोनों ऑप्शंस दिए होंगे तो बच्चों को दोनों ऑप्शन पे सही करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार फिजिक्स में भी पूछ लेते हैं और मैथ्स में तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमें ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये वाला टूल कितना इंपॉर्टेंट है। देखो हमने दोनों तरह के कन्वर्जन सीख लिए, कार्टेशियन से पोलर को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हमने सीख लिया, और पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हमने सीख लिया, और दोनों के बीच में हमने रिलेशंस भी देख लिए। ठीक है, सो दिस टॉपिक वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, कुछ भी डाउट रहता है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और you can rewind the video and watch again this concept to understand for proper understanding. So let's move on to the next topic. Next is the distance between 2 points in Cartesian coordinate system. तो हमें distance निकालना है 2 points के बीच में Cartesian coordinate system में। तो सबसे पहले let us consider 2 points A and B। ठीक है, तो हमने A और B दो पॉइंट कंसिडर करें। अब A को लोकेट करो, तो A की X पोजीशन है x1, सिमिलरली A की Y पोजीशन है y1, B पॉइंट की X पोजीशन है x2 एंड B पॉइंट की Y पोजीशन है y2। ठीक है, तो हमने दोनों पॉइंट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लोकेट कर लिया। अब आप बड़े ध्यान से देखो, तो हम A पॉइंट को एक्सटेंड कर रहे हैं, C पॉइंट तक मीट करवा रहे हैं, और B पॉइंट को भी एक्सटेंड कर रहे हैं, C पॉइंट तक मीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, आपको दिखा रहा है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है तो हमें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। बाय अप्लाइंग दिस पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड दैट, अब BC और AC की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप AB की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज द डिस्टेंस। AB is nothing but the distance between the 2 points. That is our aim, to calculate the distance between 2 points in the Cartesian coordinate. तो Cartesian coordinate में हमने दो पॉइंट्स ले लिए। अब हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें BC की वैल्यू पता होनी चाहिए और AC की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम AC की वैल्यू निकालेंगे। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है x2 है ना, और हमें यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस पता है x1 है। तो x2 में से अगर हम x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ AC। सिमिलरली हमें ओरिजिन से यहाँ तक के डिस्टेंस पता है y2 है, और ओरिजिन से यहाँ तक के डिस्टेंस पता है y1 है। तो हम y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ BC। ठीक है, अब आपको AB निकालना है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम we'll calculate this AB² equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and by taking square root you will get the distance under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. That is also known as distance formula। ठीक है, इसको हम distance formula भी बोलते हैं, और ये बहुत important formula है। formula क्या बोले, आपको तो समझ आ ही गया होगा। Actually this is basic mathematics, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के इस रिलेशन को निकाला है। इसको आप याद भी रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और आप डिराइव भी कर सकते हो, जैसा कि हमने 3 स्टेप्स में इसको डिराइव कर लिया। सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द डेरिवेशन, इट इज़ नॉट वेरी टफ, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी आर एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द एनी 2 पॉइंट्स which are given in the Cartesian coordinate system. This is also known as distance formula, and you will realize the importance of this formula in the coming
next concepts. Okay, so this is also very most important formula and most important tool. Now we are also going to see the distance between the 2 points in the polar coordinates. तो जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अभी देखा, वैसे ही हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले हम देखो अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट किया. अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए. लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट्स. वन पॉइंट इज P, that is at an angle θ1 from the x-axis, positive x-axis in counter clockwise direction. यहाँ पे देखो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है कि हम काउंटर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो θ1 इज पॉजिटिव. ओके, एंड पॉइंट Q at an angle of θ2 from the positive x-axis in counter clockwise direction. Similarly, the distance of point P from origin is R1 and distance of point Q from the origin is R2. Okay, so angle between the two lines, this R1 and R2 is θ1 minus θ2. If you subtract these two angles, you will get the angle between R1 and R2. अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके थे, दैट इज कोसाइन रूल. कोसाइन रूल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स में डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में. एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं. कोसाइन रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और इसकी हेल्प से ही हम इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, P और Q के बीच का. ठीक है, हमें P और Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो P और Q के पॉइंट बीच का डिस्टेंस हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें कोसाइन रूल पता होगा. अब कोसाइन रूल एक बार फिर देख लो. कोसाइन रूल क्या बोलता था? सपोज दीज आर द साइड्स A, B and C ऑफ अ ट्राइंगल and these are the angles alpha, beta and gamma respectively. Then A square equal to B square plus C square minus 2BC cos of alpha. है ना, A स्क्वायर अगर हमें निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड्स कौन सी है? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐड करो उनको और माइनस 2BC कॉस अल्फा. सिमिलरली B स्क्वायर निकालना है तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू साइड्स. देखो कोसाइन रूल में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको देख ले, नहीं तो इधर समझ ले. और C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B कॉस गामा. बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमें इस ट्राइंगल पे लगाना है, दैट इज OPQ. In triangle OPQ, by applying the cosine rule, you will get PQ square equal to R1 square plus R2 square minus 2R1 R2 cos of angle between R1 and R2. ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन R1 and R2. R1 and R2 के बीच का एंगल कौन सा होगा? देखो, दिस इज द एंगल θ1. देखो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल आपका θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है. तो दोनों का सेंस सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है. θ1 भी पॉजिटिव है, θ2 भी पॉजिटिव है. तो हमें बीच का एंगल निकालना है, तो हमें θ1 में से θ2 को माइनस करना होगा. इसलिए हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये वाला एंगल मिल गया. ठीक है, एंगल बिटवीन R1 एंड R2. तो यही कोसाइन रूल का फंडा है. देखो कोसाइन रूल कितना इंपॉर्टेंट है. PQ स्क्वायर हमने डिस्टेंस निकालने में कितना काम आया इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम डिस्टेंस निकालने के लिए कोसाइन रूल की हेल्प लेंगे और कोसाइन रूल इस ट्राइंगल पे लगाएंगे. तो हमें यहाँ से देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2, दैट इज द एंगल बिटवीन R1 एंड R2 हमें मिल जाएगा. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. Now let us try to understand this polar coordinate system with one example. सपोज करो हमें 2 पॉइंट्स P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है और हमें R1 R2 की वैल्यू दी हुई है. लेट्स से R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. R1 की भी वैल्यू दे दी, R2 की भी वैल्यू दे दी. θ1 इज इक्वल टू π/3. π/3 मतलब 60 डिग्री हो गया, है ना. एंड θ2 भी हमें दिया हुआ है, θ2 इज π/6. π/6 मीन्स 30 डिग्री हो गया. ठीक है, सो दोनों एंगल्स पॉजिटिव है और दोनों R की वैल्यू भी पॉजिटिव है. अब हमको निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. तो हम कैसे निकालेंगे? सो हमें ये रूल पता है, PQ स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2. दिस हैज कम फ्रॉम कोसाइन रूल. ठीक है, वो कोसाइन रूल हमने लगाया और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल लिया. हमने कोसाइन रूल किस पे लगाया? ये ट्राइंगल पे, OPQ ट्राइंगल पे. ठीक है, वी अप्लाइड कोसाइन रूल इन ट्राइंगल OPQ. तो हमें PQ स्क्वायर निकालना है, तो हम उसकी ऑपोजिट साइड्स का स्क्वायर करेंगे, दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन R1 एंड R2 विच इज θ1 माइनस θ2. सो θ1 में से θ2 को माइनस करो, 60 माइनस 30 यू विल गेट 30 डिग्री.
Here we have done 5 square r1 square plus r2 square, that is 5 square plus 5 square minus 2 into 5 into 5 cos of 30. Cos 30 की वैल्यू आप सब जानते हैं, that is sin 60 root 3 by 2. So after solving this you will get pq square equal to 50 minus 25 root 3. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. Now let us begin with the application of distance formula. जैसा कि अभी हमने distance formula पढ़ा, तो किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसकी एप्लीकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है. तो डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. लेट्स से वी आर गिवन 3 डिफरेंट पॉइंट्स, देन 2 केसेस आर पॉसिबल. दैट इज नंबर 1 इज ईदर दिस पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, या तो ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, और या तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. 2 ही केस पॉसिबल हो सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड दैट हाउ टू फाइंड. So let the 3 points be A, B and C. So if AB plus BC equal to AC, अगर ये condition satisfy होती है, AB plus BC equal to AC, this implies collinear points. Second one is if AB plus BC is not equal to AC, then this implies non-collinear points, which means it forms a triangle. Now again the question arises in the mind that which triangle. So to find out which triangle, let us move on to which types of triangle are possible. Okay, so these are the possibilities of the triangle. Number 1 is equilateral triangle, number 2 is isosceles triangle, number 3 is right angle triangle, and number 4 is scalene triangle. Okay, so for equilateral triangle, what is the condition for equilateral triangle? So for equilateral triangle the condition is all the 3 sides must be equal. So हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा AB के बीच में, BC के बीच में और AC के बीच में, और तीनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा. ठीक है. फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू BC विच इज नॉट इक्वल टू AC. हमें किन्हीं 2 साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है और तीसरी साइड्स के अनइक्वल होंगी. देखो इसका मतलब हमें डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हमें जैसे कि कोई भी 3 पॉइंट्स दिए A, B और C, तो हमें तीनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना. तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, AB के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, जैसे हमने अभी अभी देखा. फिर हम BC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमें तीनों का डिस्टेंस मिल जाएगा. जैसे हम तीनों का डिस्टेंस मिल जाएगा तो उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं. अगर ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाएंगे तो वो कोलिनियर कहलाएंगे, तो उनका एरिया भी 0 हो जाएगा, है ना. बिकॉज ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा, जब एरिया ट्राइंगल ही नहीं फॉर्म हो गया तो एरिया 0 हो जाएगा, है ना. तो 2 ही केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो वो कोलिनियर होंगे या तो वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. अब ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो उसमें 4 केस पॉसिबल है. पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल और चौथा स्केलिन ट्राइंगल. कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल भी एक्सिस्ट कर से, जैसे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2, है ना. इस कॉम्बिनेशन भी कई बार एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू. फॉर राइट एंगल ट्राइंगल द कंडीशन इज, हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर देंगे. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर. ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी तो अपने आप वो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा. फॉर स्केलिन ट्राइंगल प्रूफ कर दो कि तीनों साइड्स अनइक्वल है तो वो स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा. ठीक है, तो ये चारों केसेस की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है चारों ट्राइंगल्स की, और इन चारों ट्राइंगल्स के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना बहुत ज़रूरी है. देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस आपको पता लग रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये डिस्टेंस फॉर्मूला. अगर हमें निकालना आ जाए तो हम कितनी सारे रिलेशंस को प्रूफ कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो यहाँ पे अब आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें, और यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. ए का कोऑर्डिनेट दिया 1,-1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया -1,4, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया 4,6. सो अवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड द डिस्टेंस AB. तो AB डिस्टेंस निकालने के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, जैसा कि अभी अभी हमने डिराइव किया. अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को बहुत डिटेल में पढ़ा, तो हम यही फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. देखो अब यहाँ पे x2 क्या होगा, दैट इज -1, x1 इज 1, तो -1 - 1 होल स्क्वायर plus y2 minus y1. What is y2 for B point is 4 and y1 is -1. So 4 minus -1, that is 4 plus 1 is 5. So we'll get -2 square plus 5 square, which is equal to under root of 29.
सिमिलरली यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। अब ये टास्क आप देखो कैसे करोगे। बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना बहुत ही सिंपल है। वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा 4 और x1 क्या हो जाएगा -1, तो 4 माइनस -1 दैट इज 5 का स्क्वायर, है ना, प्लस 6 माइनस 4 दैट इज 2 का स्क्वायर। तो निकाल लो यहाँ से 25 प्लस 4 यू विल गेट बी सी इक्वल टू अंडर रूट 29। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए बी की वैल्यू बी सी की वैल्यू सेम हो गई। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो गया, लेकिन अभी हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें तभी पता चलेगा जब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप ए सी की वैल्यू निकालोगे ये सेम फॉर्मूला लगा के, सो यू विल गेट अंडर रूट 58। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए मतलब ये कंफर्म हो गया कि दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। बट वन कंडीशन यू हैव सीइंग दैट बी सी इक्वल टू ए बी, और हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करो तो यू विल गेट ए सी स्क्वायर। इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री भी है। मतलब ये कैसा कंडीशन हो गई, दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह का होगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया ट्राइंगल में, और आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल हो गई। दो साइड्स इक्वल हो गई तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो इनके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो सकते हैं बताओ, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो मतलब आपको पूरी पिक्चर ही क्लियर हो गई। आपको तीनों साइड्स भी पता चल गई, तीनों एंगल्स भी पता चल गए, और तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स पता चल गई तो हमें ट्राइंगल की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। आपको ए बी पता चल गया, आपको बी सी पता चल गया, आपको सी ए पता चल गया, तीनों साइड्स पता चल गई, तीनों एंगल्स पता चल गई। अब बचाओ बता ही गया इस ट्राइंगल में। हमें इस ट्राइंगल पे पूरी पीएचडी कर ली। देखो पूरे ट्राइंगल की हमने एवरी इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड कर ली। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी गुड वन, so you can understand it, very simple and very good example. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। सपोज हमको ट्राइंगल का एरिया निकालना है और हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। लेट्स से द 3 कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 फॉर a point, x2 y2 for b point and x3 y3 for c point, and you have to calculate the area of this triangle. सो एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखो बड़े ध्यान से इसको हमने कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने हाफ इनटू, ठीक है, ये मॉड जो हमने लगाया इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। इसके अंदर जो भी हम सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू मिलेगी हमें हमेशा आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने x1 लिया तो x1 कोऑर्डिनेट के साथ इसके बाद वाले कोऑर्डिनेट के y2 और y3 बचे। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है 2 3, ऐसे याद रखो 1 2 3। ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा 3 और 1। तो हमें एक साइकिल पता चल गई इस फॉर्मूले को याद रखने की। देखो 1 2 3। ठीक है, अब 1 अगर हम x कोऑर्डिनेट में हम सबस्क्रिप्ट अगर 1 ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट में सबस्क्रिप्ट क्या आएंगे 2 और 3। ठीक है, अगर हम x कोऑर्डिनेट में सबस्क्रिप्ट 2 ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट में सबस्क्रिप्ट क्या आएंगे, 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद अगेन घूम के आ जाओगे 1। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट में सबस्क्रिप्ट क्या आ जाएंगे 3 और 1। तो वैसा ही हमने यहाँ पे किया। देखो y कोऑर्डिनेट में सबस्क्रिप्ट क्या लिए 3 और 1 अगर x में 2 है। अब अगर x में 3 लिया, अगर x में आपने सबस्क्रिप्ट में लिया 3 तो y में सबस्क्रिप्ट क्या आ जाएगा, देखो 3 के बाद घूम के कहाँ पे आओगे वापस 1 पे, और 1 के बाद कहाँ जाओगे वापस 2 पे। तो आपको ये साइकिल याद रखना है, दैट इज 1 2 3। यू हैव टू रोटेट इन अ क्लॉकवाइज, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से अगेन 1। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर आप x के साथ 1 सबस्क्रिप्ट ले रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो y के साथ देखो क्या सबस्क्रिप्ट लोगे, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, तो y में सबस्क्रिप्ट आ जाएगा 2 और 3, तो y2 माइनस y3 प्लस। अब आप x2 ले रहे हो तो x2 के साथ 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा 1। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2, 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा 1। तो यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट क्या लोगे 3 और 1। सिमिलरली x3 के साथ y1 माइनस y2। इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, एंड इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आप उसका मॉड ले लोगे, मतलब आपको आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एरिया। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, वेरी फंडामेंटल फॉर्मूला। हमें इसके प्रूफ पे नहीं जाना है, लेकिन हमें इसके एप्लीकेशन को याद रखना है। अगर एरिया 0 होगा, अगर एरिया 0 होगा वो तभी पॉसिबल है जब पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना।
अगर एरिया हमारा 0 आ रहा है तो वो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर, जैसा कि हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करो 3 पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स अगर वो कॉलिनियर हैं तो वो कोई एरिया फॉर्म कर ही नहीं सकते। तो ट्राइंगल तभी फॉर्म होगा जब नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। किसी भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ही ट्राइंगल हमेशा फॉर्म होता है। जब तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे तो दे कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, सो एरिया इज ऑलवेज 0। कॉलिनियर मीन्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो एरिया हमेशा 0 हो जाएगा। अगर आपने इसकी वैल्यू को सॉल्व करके इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। तो एरिया से हमें पता चल जाएगा कि तीनों पॉइंट्स का नेचर कैसा है ना। तीनों पॉइंट्स का नेचर हमें पता चल जाएगा। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स पता है, सपोज करो 1, -1, -1, 4 एंड 4, 6, और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, हाफ ऑफ x1 के साथ y2 - y3 प्लस x2 के साथ y3 - y1 प्लस x3 के साथ y1 - y2। कैसे रिमेंबर रखना है हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे वैल्यूज देखो पुट करो। x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 1, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दी। y2 - y3, y2 इज हियर 4 एंड y3 is here 6, so 4 - 6 we have substituted. Similarly x2 is equal to c here -1, so x2 is -1 and x2 के साथ क्या आएगा, हमेशा आगे जाओगे 2 और 3, x2 के साथ हाँ 3 और 1, तो 3 और 1 में y3 की वैल्यू पुट करोगे, that is 6 and y1 की वैल्यू 1, तो 6 minus of -1, then put the value of x3 value is 4 and y1 minus y2, y1 value is -1 and y2 value is 4, so -1 -4. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट a -29, और हमें पता है ये जो हमने मॉड लगा है इसका मतलब हमें पॉजिटिव ही कंसिडर करना है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हाफ ऑफ 29, दिस स्क्वायर यूनिट्स इज द यूनिट ऑफ एरिया, दिस इज द एरिया, ठीक है। इतने स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया आ गया। तो आंसर इज 29/2। In this way, by simply remembering this formula, which is very simple to remember as we have discussed, you can calculate the area between any 3 given points. Okay? अगर यहाँ पे एरिया 0 आ जाता तो ये कैसे पॉइंट्स हो जाते हैं, कॉलिनियर। लेकिन अभी एरिया यहाँ पे कितना आया, 29/2, मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। ओके, सो यू कैन डिस्क्राइब बाय एरिया दैट दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर, मीन्स नॉट लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सो हियर आर सम शॉर्ट ट्रिक्स फॉर यू विच आई फाउंड मे बी हेल्पफुल टू यू। सो लेट अस डिस्कस दिस शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो बहुत ध्यान से सुनिए इसको। सो फर्स्ट वन इज लेट अस कंसिडर 3 पॉइंट्स दैट इज -5,7, -4,5 एंड 4,5 विच आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन फाइंड द एरिया। ठीक है, तो ट्रिक नंबर वन क्या है, मेक एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट 0,0, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो ईजी हो उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने इस कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट कर लिया -4,5 को, है ना। तो अब मुझे -4,5 को क्या करना है, -4,5 को 0,0 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूँगा, इसमें मैं +4 और +5 को ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही +4 +5 ऐड करूँगा तो ये कोऑर्डिनेट 0,0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स का रूल यही बोलता है कि जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ मैं बाकी कोऑर्डिनेट्स के साथ भी करूँ। भाई बाकी कोऑर्डिनेट्स के साथ भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबके साथ फेयर गेम। तो मैंने इसमें भी +4 किया, तो -5 में +4 किया सो आई विल गेट -1 एंड 7 में +5 किया सो आई विल गेट +12। सिमिलरली मैं +4 +5 इसके साथ भी करूँगा क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स के साथ फेयर प्ले होना चाहिए। तो 4 + 4 करूँगा, यू विल गेट 8 एंड 5 + 5 यू विल गेट 10। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 0,0 है इस कोऑर्डिनेट को भूल जाऊँगा। अब इस कोऑर्डिनेट को जैसे ही मैं भूल जाऊँगा तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट बचेंगे, वन इज -1,12 एंड अनदर इज 8,10। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ का एक्सट्रीम -1 है, -1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से। सो -1 × 10 -1 × 10 माइनस अंदर वन एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करूँगा 12 × 8। पहले आउटर एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करूँगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा इनर एक्सट्रीम्स को, ठीक है। तो -12 × 8, जैसे ही मैं ये करूँगा तो मेरे को एरिया मिल जाएगा 53 स्क्वायर यूनिट्स। देखो आपने एक ही स्टेप में एरिया निकाल दिया, इतने बड़े कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मेथड कई बार काम आता है एरिया निकालने में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कोऑर्डिनेट चूज़ करना है जिसको आप 0,0 में कन्वर्ट कर सको।
जैसा कि हमने यहाँ पे किया 0,0 में कन्वर्ट किया, फिर 0,0 में इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हमने इस कोऑर्डिनेट के साथ किया b के साथ, वही हम a के साथ भी करेंगे, वही हम c के साथ भी करेंगे। तो सब में हमने +4 +5 +4 +5 ऐड कर दिया, तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम 0,0 को इग्नोर करेंगे, 0,0 को नेग्लेक्ट करेंगे, और हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ आउटर एक्सट्रीम्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ इनर एक्सट्रीम्स। तो आउटर एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट किया माइनस इनर एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट किया, यू विल गेट एरिया 53 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द वेरी, बहुत ही शानदार ट्रिक है, अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स मूव ऑन टू ट्रिक नंबर 2। दिस इज ट्रिक नंबर 2। सपोज हमें तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ट्राइंगल के ए बी और सी, दैट इज -3,4 एंड 1,-2 एंड c is 5,5। These are the coordinates of triangle, then find the area। अब हमें एरिया निकालना। अब ट्रिक नंबर 2 क्या बोलती है, देखो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या किया हमने, x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2, फिर यहाँ पे x1 माइनस x3 अपॉन y1 माइनस y3। ये वाली जो दो लाइन्स है ये इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम इस एग्जांपल में सीख लेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 और y1 को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो x1 इज इक्वल टू -3 एंड y1 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू -2, यहाँ से आप देख सकते हैं। और x3 हमारा क्या हो जाएगा 5 और y3 भी क्या हो जाएगा 5। अब हमें क्या करना है, इस वे में इस वैल्यूज़ को पुट करना है। देखो इस वे में आप पुट करोगे x1 y1, तो पहले x1 और y1 का वैल्यू पुट किया मैंने, x1 और y1 का वैल्यू पुट करोगे सबसे पहले। तो x1 y1 का वैल्यू पुट किया -3 और 4, कॉलम वाइज पुट करोगे। फिर x2 और y2 का वैल्यू पुट करोगे, है ना। x2 और y2 का वैल्यू कॉलम वाइज पुट करोगे तो -1 और -2। सिमिलरली x1 y1 का वैल्यू यहाँ पे ऐसे पुट करोगे कॉलम वाइज, और x3 y3 का वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, कॉलम वाइज। तो अब आप देखो जैसी वैल्यूज पुट करोगे, अब फिर वैल्यूज के बीच में नेगेटिव का साइन लगाओगे, तो हमें ये वाला फॉर्म में इक्वेशन हमारे मिल जाएगी, ठीक है। -3 -1, 4 -2, -3 -5, 4 -5। तो ये फॉर्मेट में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करो। -3 -1 इज -4, -3 -5 इज -8, 4 -2 इज +6 एंड 4 -5 इज -1। हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, दिस इंटू दिस, -4 इंटू -1 माइनस दिस इंटू दिस, 6 इंटू -8। तो -4 इंटू -1 करूँगा तो क्या मिलेगा +4, और -6 इंटू -8 करूँगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो +48 + 4/2 यू विल गेट आंसर 26 स्क्वायर यूनिट्स। इट्स अ वेरी सिंपल। अगर आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया कि इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन को अरेंज करना है एरिया निकालने के लिए, ये फॉर्मेट में अगर आप अरेंज कर लोगे तो आप एरिया एक स्टेप में निकाल लोगे। दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट, है ना। ये 3 स्टेप जो मैंने कैलकुलेशन में लिखे, ये आप एक स्टेप में भी कर सकते हो अगर आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ गए तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रिक नंबर 2। यू कैन ईदर यूज ट्रिक नंबर 1 और यू कैन यूज ट्रिक नंबर 2, or you can use the main formula which we have discussed to calculate the area of triangle. Now let's move on to trick number 3. So suppose we are given a coordinates a -3,1, b 1,5 and c -2,8 which are the coordinates of a triangle, then find the area again. Okay, so trick number 3 कैसे अप्लाई करोगे ये देखो। ट्रिक नंबर 3 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे ए बी और बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। ए बी और बी सी की कौन सी वैल्यू निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का रेशियो कैलकुलेट करेंगे फॉर द साइड्स ए बी एंड बी सी। इसी को हम आगे अभी पढ़ेंगे, इसी को हम m से डिनोट करते हैं और इसी को हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। ये आगे आपको क्लैरिफाई होगा। अभी खाली आप इतना याद रखो कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी, व्हाट विच वैल्यू, दैट इज द रेशियो ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इसका रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम इसको m सिंबल से डिनोट करते हैं। एम ए बी इज इक्वल टू, देखो y2 की वैल्यू है 5 एंड y1 की वैल्यू 1, तो 5 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस -3, x2 minus x1, 1 minus -3, you will get the value 4/4 which is equal to 1. Now you have to calculate the ratio, this ratio for the values of
बी सी, तो बी सी के लिए यही सेम चीज़ निकालोगे तो क्या मिलेगा, 8 माइनस 5 अपॉन माइनस 2 माइनस 1, यू विल गेट द वैल्यू -1. ओके, सो फर्स्ट वन के लिए +1 मिला, सेकेंड वन के लिए -1. अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए, है ना, दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आ जाए, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, ये आपको समझना है. अगर दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू -1 के बराबर आ जाए तो ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल. ये आप चीज़ को समझ जाए. ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया फिर तो इसका एरिया निकालना बहुत ही सिंपल है. राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब तो बहुत सिंपल हो गया है क्वेश्चन. देखो हमने इस क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफाई कर दिया. अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस की वैल्यू हम डिस्टेंस फॉर्मुला से निकालेंगे, हाइट की वैल्यू भी डिस्टेंस फॉर्मुला से निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द बेस एंड हाइट. सो बेस की वैल्यू हम निकालेंगे, देखो हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी. तो ए बी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मुला से निकाल लेंगे. ए बी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मुला हमने लगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सिमिलरली बी सी की वैल्यू भी हम डिस्टेंस फॉर्मुला से निकालेंगे. अब डिस्टेंस फॉर्मुला जैसे हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 32. सिमिलरली बी सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी √18. अब तो बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जैसे हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा हाफ इंटू अंडर रूट 32 इज 4√2 एंड अंडर रूट 18 इज 3√2. यहाँ से देखो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 12 स्क्वायर यूनिट एज योर आंसर. सो दिस इज वेरी वेरी, तो आप तीनों में से कोई भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको जो भी कन्वीनियंट लगे यू कैन अप्लाई टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यू कैन यूज द कन्वेंशनल मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड फर्स्टली. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. So section formula is very important, and we have to understand this section formula. So in section formula, firstly we are going to discuss the midpoint formula. So what is midpoint formula? Midpoint formula, let us, we are given point A, B and C. A के coordinates है x1, y1, B के coordinates है x2, y2, और हमें C के coordinate निकालने हैं. और हमें ये पता है कि C जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है. ठीक है, तो मिड पॉइंट जब हमें पता है तो हम C के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. सिंस C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज. अब C के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों कोऑर्डिनेट्स x के ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड करो, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x आपको मिल जाएगा. सिमिलरली C का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो C का हमें x कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, और C का y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा. बाय दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला. दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट C एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट C. तो हमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए by applying this midpoint formula. So let's move on to next. Second is internal division. Midpoint formula में अभी हमने देखा दोनों equal ratio में divide होते थे. अब internal division में यहाँ पे जो ratio है, जैसे कि 3 पॉइंट्स हमारे पास, पहला पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, दूसरा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और जो C पॉइंट है वो AB लाइंस को m/n में डिवाइड कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे नहीं है. सो दिस इज डिवाइडिंग इन अ रेशियो ऑफ m/n. सपोज करो दिस इज m एंड दिस इज n, तो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो हम C के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो C के कोऑर्डिनेट हो जाएगा फ्रॉम दिस इंटरनल डिविजन फॉर्मूला, दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 plus my1 upon m plus n. This is the x coordinate of point C by internal division formula, and this is the y coordinate of point C. अब देखो अगर आप यहाँ पे m इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट करोगे, जब आप m इक्वल टू n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, है ना. यहाँ पे m और n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1x2 प्लस 1x1 दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2.
सो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हम डिराइव करते हैं वो बेसिकली इंटरनल डिवीजन से ही निकलता है। तो इंटरनल डिवीजन आपका जनरल इक्वेशन हो गया, इससे आप मिड पॉइंट फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट इज, let us consider one example. Find the coordinates of the point that internally divides AB in 2:1. अब 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है, तो हमें निकालना है ना। तो हमें कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट का जो उसको इंटरनली डिवाइड कर रही है इन रेशियो ऑफ 2:1। तो हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है 1,-2, बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स पता है 3,5, है ना। तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x1 y1 और x2 y2। नाउ पुट m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1। m की वैल्यू हमें 2 दी हुई है क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो बताया हुआ है 2:1 में। तो अब हम इसको जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1। आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है x1 x2 y1 y2 m और n की। सो यू विल गेट द x कोऑर्डिनेट इज 7/3 and y coordinate is 8/3. It's very simple. You have to just remember this formula of internal division, mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus ny1 upon m plus n. तीसरा जो केस पॉसिबल है वो है एक्सटर्नल डिवीजन का। अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, अभी तक सी पॉइंट जो था आपका इंटरनल डिवाइड कर रहा था, मतलब वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा था। अब ऐसा जरूरी नहीं हर बार जो सी पॉइंट हो ए और बी के बीच में ही लाई करे, हो सकता है सी पॉइंट है वो ए बी लाइन के आउटसाइड लाई कर रहा हो और इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो इन अ रेशियो ऑफ m:n। देन व्हाट, हाउ वी कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। सो वैसे हमें पता है, देखो ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2। अब सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। यूज दिस फॉर्मूला। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। सो दिस इज द इक्वेशन विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट इफ द C पॉइंट इज एक्सटर्नली डिवाइडिंग द लाइन AB इन अ रेशियो ऑफ m:n, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। आप इस फॉर्मूले को यूज करके एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो C पॉइंट के, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम इनके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, की पॉइंट्स। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इट इज द पॉइंट दैट बैलेंसेस द शेप और ज्योमेट्री। ये एक ऐसा पॉइंट है जो ज्योमेट्री को बैलेंस करता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। ये ट्राइंगल का हम निकाल रहे हैं, आप सेंट्रॉइड किसी भी ज्योमेट्री का निकाल सकते हैं। अगर आपको सपोज करो स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर का सेंट्रॉइड उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, ठीक है। अगर आपको सपोज करो सर्कल दिया है तो सर्कल का सेंट्रॉइड उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, है ना। इट इज़ बेसिकली द ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर को ही हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, जो उस पूरी शेप को बैलेंस करता है। यहाँ पे हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो वो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे उस शेप बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। वो ऐसा ज्योमेट्रिक सेंटर, सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री बेसिकली। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन सेंटर ऑफ मास इन फिजिक्स। देखो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, ठीक है। दिस बैलेंसिंग पॉइंट इज क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। अब ये जो बैलेंसिंग पॉइंट हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड हम क्रिएट करते हैं, ट्राइंगल के जो सेंट्रॉइड हम क्रिएट करेंगे ये आता है 3 मीडियन के इंटरसेक्शन से। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन मीन्स द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन ट्राइंगल टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। सपोज करो ये हमारे पास वर्टेक्स ए है, अब हम इस लाइन के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स पे, ठीक है। तो ये हो गया मीडियन विच इज डिवाइडिंग दिस लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली वर्टेक्स बी से हम जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो उसके ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, सो विल गेट मीडियन 2। एंड सपोज करो हम सी वर्टेक्स से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो उसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, देन यू विल गेट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट
and this point is known as the centroid of a triangle. This point is known as the centroid. ठीक है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, जो तीन मीडियन के इंटरसेक्शन से फॉर्म होता है। जो तीन मीडियन के इंटरसेक्शन से फॉर्म होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द triangle. Okay, now what is the property of centroid? Centroid divides the median in a ratio of 2:1. बहुत ही important property है, बहुत सारे एप्लीकेशन में, फिजिक्स के फंडों में ये प्रॉपर्टी काम आएगी कि सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को डिवाइड करता है इन रेशियो ऑफ 2:1. सो यहाँ पे देखो आप 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देता है। मतलब सपोज करो ये पॉइंट आपका मिल गया G, तो ये जो रेशियो हो जाएगा AG/GM, ये आपका हो जाएगा 2:1. इसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। नाउ फाइंडिंग द वर्टेक्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड जैसा कि हम देख चुके हैं, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड इज दैट पॉइंट विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। अब सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3 रिस्पेक्टिवली। अब हमने क्या किया, हर ऑपोजिट वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ किया जो ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम A, फ्रॉम B एंड फ्रॉम C। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुए, इस पॉइंट का नाम हमने दिया G, इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड इसको हम बोलेंगे। अब M, N और O ये जो पॉइंट्स है जो साइड्स पे लाई कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट है बेसिकली, क्योंकि मीडियन का मतलब यही होता है कि ये वाली साइड जो है BN किसके बराबर हो जाएगी, AN के। सिमिलरली AO किसके बराबर हो जाएगी, OC के। और यहाँ पे BM किसके बराबर हो जाएगी, MC के। ठीक है, तो सारी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब M, N और O के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलते हैं, अगर M मिड पॉइंट है B और C का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 + x3/2। इसके y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y2 + y3/2। सिमिलरली n कोऑर्डिनेट्स के निकालोगे तो n इज द मिड पॉइंट ऑफ A and B। अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम, so you will get the coordinates of n are x1 + x2/2 and coordinates of y for point n are y1 + y2/2. Similarly you can calculate the coordinates of O. अब हमें ये कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए और हमें रेशियो भी पता चल गया कि AG/GM कितना होगा, 2:1, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड करता है साइड को 2:1 में मीडियन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का हेल्प लेके हम सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाएंगे AM लाइन पे 2:1 में डिवाइड करके, ठीक है, तो हम G का कोऑर्डिनेट का प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रूफ इतना आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसको प्रूफ करोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ G पॉइंट आपको मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ G पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ G पॉइंट मिल जाएगा x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, और अगर आपको प्रूफ निकालना है तो आप प्रूफ निकाल सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन ट्राई इट एज एन एक्सरसाइज। आप क्या करो, AM लाइन को 2:1 में डिवाइड करके यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, और जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आपको M के कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको A के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आपको G के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। किसी भी आप एक मीडियन को पकड़ के उस पर सेक्शन फॉर्मूला लगा के G के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल। प्रूफ से ज़्यादा उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूफ आप एक्सरसाइज के तौर पे खुद से करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। और ये हम जैसा कि देख चुके हैं, AG की वैल्यू क्या होगी, 2/3 ऑफ AM। ठीक है, क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है ना, तो दिस इज 2 पार्ट, दिस इज 1 पार्ट। एंड GM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ AM। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डिवाइड करता है 2:1 के फॉर्म में। ओके, आई होप सो आपको सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और पता भी चला होगा कि सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ फाइंडिंग द वर्टेक्स ऑफ इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय इन सेंटर? इन सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल।
तो जैसे कि हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसके इंटरनल एंगल को जो बाइसेक्ट करता है, जैसे कि ए एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। बी एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, तो ये बी एंगल का बाइसेक्टर हो गया इंटरनल। सी एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर हो गया। इन तीनों के इंटरसेक्शन से जो हमें पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर इज डिनोटेड बाय सिंबल आई। आई से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि आई मीन्स इनसाइड द ट्राइंगल। इन सेंटर हमेशा इनसाइड लाई करता है ट्राइंगल के, क्योंकि आई से डिनोट करते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे इन सेंटर के? इसका प्रूफ अगेन एज एन एक्सरसाइज यू कैन डू, इट्स वेरी सिंपल बट द रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चंस में ये वाला टूल हमें अप्लाई करने के लिए आ जाता है, सो यू कैन इजीली रिमेंबर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, दैट इज आई आर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है? स्मॉल a इज द साइड opposite to vertex a, small b is the side opposite to vertex capital B, small c is the side which is opposite to vertex capital C. From this you can calculate the coordinates of in center. Okay, तो in center का concept भी clear हो गया। In center is formed by the internal angle bisectors of the triangle. Internal angle bisector से जो form होता है, उन तीनों के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलता है, उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू while you are preparing for entrance examination like NEET or JEE mains, and it is also very very important and very basic fundamental concept that you should know while you are solving different type of problems in physics. So let us discuss this concept. What is this concept? First of all, you can see that slope. What do you mean by slope? The slope is defined as the tangent of angle made by a line with the positive x-axis. It is known as slope. Tangent of angle made by a line with positive x-axis. इसका मतलब क्या है? देखो, सपोज करो हमें कोई लाइन दी है, इस लाइन को हमने x और y एक्सिस पे प्लॉट किया। अब आप देखो, हमें टेंजेंट निकालना है, मतलब tan थीटा निकालना है। और tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा ना टेंजेंट ऑफ एंगल। एंगल सपोज करो थीटा, आप काउंटर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके। और इस पे हम tan लगा देंगे, तो tan ऑफ एंगल को ही हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो जहाँ भी स्लोप वर्ड यूज होगा वहाँ पे आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए दैट मीन्स tangent of angle with respect to x axis, which is simply means tan theta. जहाँ भी स्लोप वर्ड आप सुनो, आपके सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए, स्लोप मीन्स tan theta. It is denoted by symbol m. Very simple, very basic and very fundamental conceptual definition of slope. Let us consider 2 points A and B having the coordinates x1 y1 and x2 y2 respectively. दो पॉइंट्स कंसिडर करिए, सपोज करो पॉइंट A एंड पॉइंट B हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x1 y1, उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और x2 y2 है respectively. Now plot the position of these points A and B on the coordinate axis, that is x axis and y axis. तो सपोज करो हमने A पॉइंट लिया, इसकी पोजीशन को प्लॉट करना है हमें x एक्सिस पे, तो हमने इसको पॉइंट का नाम दे दिया x1 एंड इसकी पोजीशन y एक्सिस पे हो गई y1. सिमिलरली हमने B पॉइंट को भी प्लॉट किया कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, B की x एक्सिस पे पोजीशन हो गई x2 एंड B की y एक्सिस पे पोजीशन हो गई y2. ठीक है, तो हमने दोनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट कर दिया, दोनों की पोजीशंस हमने डिफाइन कर दी. Now let us connect the 2 points A and B with the help of a line. So हमने A और B पॉइंट को कनेक्ट कर दिया
अब जैसे ही हम ए और बी पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, वी कैन सी अ ट्राइंगल इज फॉर्म, ट्राइंगल ए सी बी, जिसमें राइट एंगल है सी पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो दिस ट्राइंगल इज 90 डिग्री, राइट एंगल एट सी। ठीक है, अ ट्राइंगल इज फॉर्म ए बी सी विच इज राइट एंगल एट सी। ओके, so let us now find out the angle theta in a counterclockwise direction from the AC। ठीक है, तो अब हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निकालेंगे थीटा। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल हो गया ये, और हम साथ ही साथ ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें x2 गिवन है, और ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 गिवन है। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द डिस्टेंस AC। सिमिलरली हमें ओरिजिन से ये डिस्टेंस पता है y2, और ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस हमें पता है y1, और हम y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, tan ऑफ थीटा निकालना है। तो tan ऑफ थीटा निकालने के लिए स्लोप क्या होता है जनरली, अभी अभी हमने डेफिनेशन देखी स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दिस लाइन लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, AC लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो लाइन कर रही है, तो इससे हमें एंगल थीटा मेजर किया, और अब इसका टेंजेंट मतलब tan ऑफ थीटा निकालेंगे। तो tan ऑफ थीटा क्या होता है हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan theta is perpendicular upon base, so you will get the value of tan theta। you can see that tan theta is equal to perpendicular upon base। तो perpendicular side कौन सी यहाँ पे, perpendicular side यहाँ पे BC है, तो tan theta is equal to BC upon base is AC which is equal to, BC की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 हमने पुट कर दी, और AC की वैल्यू कितनी निकाली थी, x2 माइनस x1, इसको भी हमने पुट कर दिया। तो हमें tan थीटा स्लोप मिल गया, स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सिंबल m। सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 if we are given 2 points A and B respectively। Okay, now we are going to discuss some equations of straight line। as you know mathematics is very vast, तो हम वही कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे मैथ्स के जो फिजिक्स में काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये देखो पहला फॉर्म है लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। इसमें m क्या है हमारा, स्लोप। ठीक है, अभी अभी हमने देखा m इज द स्लोप, x इज द x कोऑर्डिनेट, y इज द y कोऑर्डिनेट एंड c इज अ कांस्टेंट। सो दिस इज द स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, अब इसको स्लोप फॉर्म भी बोल सकते हो, दिस इज नोन एज स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, देखो मैथ्स इज वेरी वेरी वास्ट, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स भी है लाइन के, लेकिन सारे फॉर्म डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप उसको पढ़ लोगे मैथमेटिक्स कोर्स में, बट जो फिजिक्स में हमारे जिस फॉर्म ऑफ लाइन हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो स्लोप फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है, और दूसरा है जनरल फॉर्म। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये दो फॉर्म आपको अगर पता है तो आप फिजिक्स में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा नॉर्मल फॉर्म और कई तरह के फॉर्म्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के जो आप मैथमेटिक्स में डील करोगे, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली दोज पार्ट विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन आवर फिजिक्स। नाउ कन्वर्ट द सेकेंड इक्वेशन इन द फॉर्मेट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। अब ए एक्स को राइट हैंड साइड ले जाओ और सी को भी राइट हैंड साइड ले जाओ, सो यू विल गेट दिस, एंड y की वैल्यू मिल जाएगी, इससे b से डिवाइड कर दोगे तो माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी। दिस इक्वेशन फॉर्मेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। सो जैसा कि अभी हमें दो इक्वेशंस मिली थी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो थी जनरल स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इक्वेशन नंबर 3 जो अभी हमने निकाली, दैट इज y इक्वल टू
माइनस ए बाई बी एक्स माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। इसको कंपेयर करके आप देख सकते हो, जब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। माइनस ए अपॉन बी से आप क्या समझते हो, माइनस ए अपॉन बी इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज a, हमने जो अभी जनरल इक्वेशन देखी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x इज द कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। a is the coefficient of x and b is the coefficient of y. So we can also write like this, slope is equal to negative of coefficient of x upon coefficient of y. This is also very most important result. Now suppose हमें example दिया है, एक equation दी हुई है, that is √3y minus x equal to 1। अब हमें इस equation का slope निकालना। तो इस इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालेंगे, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे देखो, माइनस ऑफ -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज हियर √3, y का कोफिशिएंट √3, सो विच इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3 विच इज इक्वल टू स्लोप। और यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ चुके हैं। तो अगर tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होगी तो थीटा विल बी 30 डिग्री। ओके, सो आप देख सकते हो ये वाला रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन दी हो तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, वहां से हम उसका एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप्स। ठीक है, तो स्लोप्स के बीच का रिलेशन अगर हमें फाइंड करना है, तो स्लोप्स के बीच का रिलेशन निकालना है तो हमें पता होना चाहिए। पहली कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, सपोज द लाइन्स आर पैरेलल, लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, ठीक है, लाइन 3 इज पैरेलल टू लाइन 4 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड 1 and 2 आर पैरेलल टू y एक्सिस। हो सकता है लाइन्स आपकी ऐसे दी हो, कुछ एंगल पे इंक्लिनेशन हो, है ना, तो लाइन्स may be inclined to the axis x and y but they are parallel। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है जब लाइन आपके एक्सिस से इंक्लिनेशन पे हो। लेट नेम दिस लाइन्स 5 and 6, लाइन 5 and 6 आर ऑल्सो पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि वो x और y एक्सिस के पैरेलल हो, इट मे बी एट एन इंक्लिनेशन टू द x and y एक्सिस। लेकिन उसकी जो बेसिक इक्वेशन होगी वो ये होगी, अगर वन लाइन इज पैरेलल टू सेकेंड लाइन, देन अगर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कांस्टेंट में खाली चेंज आया है, बाकी स्लोप लाइन का सेम रहेगा, क्योंकि स्लोप तो सेम ही है ना, दोनों लाइंस का इंक्लिनेशन सेम है। पैरेलल का मतलब यही होता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उनका इंक्लिनेशन हमेशा सेम रहेगा। मीन्स ये थीटा जो होगा ये θ1 θ2 के बराबर होगा, तभी तो दो लाइंस पैरेलल कहलाई जाएंगी। दो लाइंस तभी पैरेलल हो सकती है जब उनका पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा सेम हो। ठीक है, तो θ1 इज इक्वल टू θ2, ठीक है, तभी वो लाइंस पैरेलल कहलाई जाएंगी। अब थीटा सेम हो गया मतलब tan थीटा भी सेम हो जाएगा, और tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो अगर थीटा बराबर होगा तो tan थीटा भी बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल हो जाएगा। और स्लोप हम अभी निकालना सीखे, दैट इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, वो वाले इक्वेशन से आप स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों लाइंस का स्लोप हमारा सेम है, तो इस कंडीशन में हमारी x और y वाले टर्म सेम रहेंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके खाली कांस्टेंट्स वाले टर्म सेम होंगे। सपोज करो कोई तीसरी लाइन होती, वो 1 और 2 दोनों के पैरेलल है, तो उसके लिए कोई कांस्टेंट हम e यूज़ कर लेते, बाकी ax प्लस बी वाला टर्म सेम रहता बिकॉज स्लोप इज सेम। तो इस तरह से हम
पैरेलल लाइंस के इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। अगर हमें एक लाइन का इक्वेशन पता है तो हम उसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 2, -1 एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन x + 2y - 5 = 0। अब जिस लाइन के पैरेलल है तो हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि उसके इक्वेशन में खाली कांस्टेंट का टर्म अलग होगा, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, तो द लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन कैन बी रिटन एज x + 2y + d = 0, क्योंकि कांस्टेंट वाला टर्म खाली अलग होगा। स्लोप तो सेम ही होगा, पैरेलल लाइन से मतलब थीटा सेम है, थीटा सेम है मतलब tan थीटा सेम है, tan थीटा सेम मतलब स्लोप सेम है। नाउ पुट द गिवन पॉइंट इन द इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन तो पता चल गई जो लाइन पैरेलल होगी, और वो कहाँ से पास हो रही है, 2, -1 से पास हो रही है। तो 2, -1 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे हम पुट करेंगे हमें d की वैल्यू 0 मिल गई। तो d की वैल्यू 0 मिल गई मीन्स लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 2y = 0। दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। कितना सिंपल मेथड है। दिस इज ऑल्सो शॉर्टकट मेथड। There is one another method which is somewhat long, but I am going to discuss that method also, क्योंकि कुछ बच्चे वो method prefer करते हैं, कुछ बच्चे ये method prefer करते हैं। तो I am going to discuss both. This is the shortcut method and another one is long cut, but I am going to discuss that method too. So let us discuss that. The method 2 is by using the equation y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is the one point slope फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, अगर हमें 1 पॉइंट और स्लोप पता हो लाइन का तो हम ये इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है और हमें उस लाइन का स्लोप पता है तो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। स्लोप निकाल सकते हैं, हम अभी अभी पढ़ा था नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विच इज इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ पे हमने स्लोप का वैल्यू निकाल दिया, m = -1/2। अब जैसे ही हमने वो पॉइंट की वैल्यू पुट करी, y1 और x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, सो वी विल गेट y - y1 y - -1 equal to -half of x - 2. After putting this equation you will get the same result, x + 2y = 0. It is long but not too much long, somewhat long है ना। यहाँ पे आपको 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़े, बट पिछला जो मेथड था वो काफ़ी शॉर्ट था। वो आप एक ही, अगर आपको अच्छे से कैलकुलेशन आती है, माइंड में आप काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन कर लेते तो 1 या 2 स्टेप में आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सपोज करो हमें अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं और हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें 2 पॉइंट्स पता है और हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a 4,6 एंड b 10,8। तो हमें दोनों पॉइंट्स पता है, हमने दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया a और b को। ठीक है, हमें थीटा भी पता है। अब हम देखेंगे ये इक्वेशन को लगाएंगे, y - y1 equal to m into x minus x1। और स्लोप हम कैसे निकालेंगे, अभी अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, अगर हमें 2 पॉइंट्स पता है तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये अभी अभी हम डिराइव किया था अभी हमने, तो स्लोप हम यहाँ से निकालेंगे। तो y2 - y1 बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख रखा है y2 मीन्स 8 एंड y1 इज 6, सो y2 - y1 इज 8 - 6 अपॉन x2 - x1 इज 10 - 4 इंटू x - 4। तो इस इक्वेशन को हमने पुट किया इसमें, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y - 6 इक्वल टू 2/6 इंटू x - 4। अब यहाँ से इसको कट कर दोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 3y - 18 इक्वल टू x - 4, एंड फाइनली यू विल गेट x - 3y + 14 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सो अगर हमें 2 पॉइंट्स पता है तो भी हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने कई बार देखा कि हमने ये वाला एक्सप्रेशन काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ किया। कौन सा एक्सप्रेशन था, वो था m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये एक्सप्रेशन हमने काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ किया, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, है ना। ये तब होता था जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आता था, -1। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और यहाँ पे हम इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए इसका प्रूफ। सपोज करो ये 2 लाइन्स है, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2 विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स फॉर्मिंग राइट एंगल। ठीक है, अब ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमने क्या किया, ये जो 2 लाइन्स है इसको हमने एक्सटेंड किया पीछे तक, और फिर यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया एक्सेस से, बी पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है,
और सिमिलरली हमने इस लाइन को ई पॉइंट से डी पॉइंट पे कनेक्ट किया ऑन एक्स एक्सिस, और हमें देखो दो ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल में आप बहुत ध्यान से देखिए, तो ये वाला एंगल मैंने जो अल्फ़ा एज्यूम किया है, और ये तो 90 डिग्री है ही क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, और इस एंगल को मान लिया बीटा, है ना। तो 90 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मिला के कितने होंगे 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। सिमिलरली अल्फ़ा प्लस जेड, ये जो एंगल ये वाला है इसको मैंने जेड डिनोट किया है, अल्फ़ा प्लस जेड भी 90 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस जेड 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें z इक्वल टू बीटा मिल जाएगा, तो मतलब z की वैल्यू बीटा के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं जो p एंगल है, ये p एंगल की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, अल्फ़ा के बराबर हो जाएगी, है ना। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया ट्रिपल ए, एंगल 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 से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम इस ट्राइंगल से tan अल्फ़ा की वैल्यू और tan बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन बी सी, एंड tan ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन सी डी, ट्राइंगल से आप निकाल लोगे, है ना। अब अल्फ़ा जो हमने मेजर किया है वो एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, और बीटा जो हमने मेजर किया है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो अल्फ़ा काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये तो हम रूल पढ़ते ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए बीटा को नेगेटिव ले लिया, और tan ऑफ माइनस बीटा इज माइनस tan बीटा। तो जब आप ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दोगे तो यहाँ से आपको दोनों साइड्स के जो रेशियो होंगे वो इक्वल मिल जाएंगे, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी अपॉन सी डी। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों प्रोडक्ट्स को, तो ये ए बी और सी डी कैंसिल हो जाएंगे, और बी सी और डी कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट -1 एज अ आंसर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रूफ है, मैंने एक आपको हिंट दे दिया, पूरा ही बता दिया, आप इसको ट्राई करके देखना, और कुछ अगर डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वैसे मैंने प्रूफ पूरा आपको बता दिया, और वीडियो को पॉज करके एक बार पेन और पेपर उठा के खुद से लिख के देखिएगा, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं और हमारे सेशन को एंड करते हैं। अब यहाँ पे हमको दो लाइंस दी हुई हैं, ये दोनों लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन m की। इस एग्जांपल में हमें m लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और l लाइन की हमें इक्वेशन दी हुई है, दैट इज 3x + 2y = 5। तो हम कैसे करेंगे, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 1, -2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन की इक्वेशन गिवन है, एल लाइन का स्लोप आ जाएगा m1 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ से हमें स्लोप मिल जाएगा -3/2। अब m2 क्या हो जाएगा, m2 हम निकालेंगे ये वाले इक्वेशन से, m1 × m2। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m2 = 2/3। अब हमको जो इक्वेशन पता ही है, दैट इज y - y1 = m × x - x1। जो हमें लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हमें सेकेंड लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है विच इज m। तो उसका स्लोप की वैल्यू हमने m2 ली है, तो उसकी स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे, और वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, -2 से पास हो रही है। सो वी आर पुटिंग द वैल्यू y - -2 = m2 × x - 1। द वैल्यू ऑफ m2 वी हैव कैलकुलेटेड 2/3, and by substituting and simplifying this equation you will get 3y + 6 = 2x - 2, and finally you will get the equation 2x - 3y - 8 = 0. I hope you are going to like this video, as this video contains a very vast concepts of mathematics which are required to solve the problems of physics, and this all content is about basic coordinate geometry. In the next video we are going to discuss the various properties related, so continue to be the part of this channel and subscribe it and like it, so that you get tuned with the new upcoming videos. Okay, bye bye, thank you.